जिस वक्त मुगलिया दौर शुरू हुआ तो ये आशुर खाने को अस्तबल बना दिया गया था, बंदी खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। ये जो तारीख़ी वाक़यात है, आपको तारीख़ी किताबों में ये मिलेंगे कि औरंगज़ेब के ज़माने में ये सब हुआ था। ये तकरीबन 70 से 80 साल तक ऐसे ही चलता रहा, जब तक सूबेदारी में रहा ये मुग़ल सूबेदार के। For some years this place became bandi khana where stables would be kept and later even pushcarts used to be kept. लेकिन जब आसिफ जाह आज़ाद हुए तो आसिफ जाह सानी के ज़माने में मेरे जद्द आला जद्द अमजद नवाब मीर नवाज़ अली खां शहदा जो मीर सामा थे उनके आसिफ जाह सानी के, उन्होंने एक अर्ज़ी दी, पिटिशन दाखिल किया बादशाह वक्त के पास कि ये आशुर खाने से अगर ये बर्खास्त किया जाए अस्तबल और बंदी खाना तो ये आशुर खाने की तामीर नो की जाएगी और यहाँ पे फिर से आज़ादारी का सिलसिला शुरू होना चाहिए। तो उसको मंजूरी दी गई। बहुक्म सरकार आसिफ जाह सानी यहाँ से बंदी खाना और अस्तबल जो थे ये सब हटाए गए और इसकी तामीर नो फरमाई हमारे जद्द अमजद ने। और इसके बाद में यहाँ के जो कुतुबशाही दौर के इल्म मुबारक थे वो मुग़लों के पास ही उस वक्त चले गए थे। यहाँ कोई तबरुकात भी नहीं थे, इल्म मुबारक भी नहीं थे। अब जो मौजूदा आलम है सन 1178 हिजरी में तामीर किए गए हैं, बनाए गए हैं ये इल्म मुबारक, और उस पर तारीख़ भी लिखी हुई है। ये हमारे जद्द अमजद के इस्ताद करदा है। But thanks to the efforts of the current caretaker of the Ashur Khana and his father, now this is a place of pilgrimage, and on the rest of the days it's a place for tourists to come and see the magnificent art and architecture of Hyderabad, and it is a symbol of the culture of Hyderabad where even Hindus would walk in and to touch the alam. आसिफ जाह सानी से मारूज़ा किए मेरे जद्द अमजद के कुतुबशाही दौर में सलातीन कुतुबशाहिया इस आशुर खाने में ज़ियारत के लिए आते थे तो सरकार ख़ुद भी ज़हमत फरमाए तो उन्होंने ये कह के उसको कबूल किया कि हम भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, यकीनन हम भी हाज़िर होंगे आशुर खाने में, हम भी ज़ियारत करेंगे, शहदाए करबला की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करेंगे। तो जब आशुर खाने में ज़ियारत के लिए आए तो एक सनद अता की इस खिदमत की आशुर खाने की नवाज़ अली खां शहदा के नाम पे मीर सामा के, और उसमें अलल औलाद लिखा हुआ है और वो खिदमत हमारे ख़ानदान में चली आ रही है। You know, we're here at the Badshah Ashur Khana, and you know, one of the things that is most remarkable about the way that performance occurs is the really intimate connection between the physical object of the alams and each individual devotee's experience of physically touching that. It's a very intimate, very soft kind of moment that also requires a level of humility when entering many of the Ashur Khanas. Alams are nothing but battle standards that were, they are designed battle standards, and they come in all shapes. The initial shape was a teardrop kind of a thing, and there's a lot of artwork in that. Some of them have jewels encrusted in them, some of them were used to be made of gold, and they were beautiful pieces of Islamic art.
this one included, there are chains on the doors. And those are a historical sort of remnant that would require those folks previously during the Qutb Shah era and anybody who would be arriving on horseback to lower their head, to step off of their horse, to present themselves with humility. You know, when we think about the city of Hyderabad as a whole, the Muharram practices and traditions are very unique to Hyderabad. In other cities around India, we see a range of different kinds of practices. Hyderabad is one of the few places where we see Shia and Hindu, you know, mixing together, Sunni, Sufi folks all kind of commemorating Muharram, commemorating the 10th of Muharram, commemorating Ashura in a variety of different ways, and doing so in consult and in conversation and in dialogue with each other. We'll see, you know, various kinds of dress that's occurring. Folks will be wearing all black, but also folks will wear white, or in some of the village contexts, you know, there might not be necessarily attachment to black or white. सलाबत जा का ज़माना था 1157 हिजरी में हुसैनी अलम की तौसी हुई, जो आज हुसैनी अलम का जो मशहूर आशुर खाना है उसकी असर नौ तामीर हुई, जो आज मौजूदा इमारत है वो उसी अहद की है सलाबत जा के ज़माने। And even during the Asaf Jahi era, the tradition of Muharram continued. But instead of this being a prime place for Muharram, it used to be the Hussaini Alam, where Nizam Ali Khan would go on the 10th day and would recite the Fatiha and would offer flowers on the alams. नाले मुबारक कलां था पत्थर गट्टी का, गोलकुंडे से वो अलम को लाकर यहाँ पर रख दिए थे, और उसके बाद अलम को जो है फिर से इस्ताद नाले मुबारक जो इलाही महल का एक हिस्सा है उसमें इस्ताद करना लगे। 1220 हिजरी में उसका रेनोवेशन हुआ। इसके बाद जो है नाले मुबारक के बाद जो है छोटे छोटे नए आशुर खाने भी बनना शुरू हुए। खमरुद्दीन अली खान निज़ाम अव्वल के नवासे ने मन्नत की थी कि अगर कुछ उनका काम हो जाए तो 12 इमाम के नाम के 12 इमाम के नाम के 12 आशुर खाने बनाए। तो एक आशुर खाना मौजूदा दौर में वो छता बाज़ार के पास है, जो जिसके ऊपर 1198 हिजरी डेट कंदा है। दूसरा आशुर खाना जो है लंगर हाउस पर मौजूद है वो, और इसी तरह से कुछ कुछ मुकामात पे वो बचे हुए हैं, बाकी के तो बेशतर ख़त्म हो गए। निज़ाम अली ख़ान के अहद में तो कई आशुर खाने तामीर हुए और रेस्टोर हुए। निज़ाम अली ख़ान के ज़माने में अरस्तुजा का बड़ा रोल रहा, और उसके बाद सबसे बड़ा रोल तो नवाज़ अली शहदा का रहा। मीर सामा भी जो थे निज़ाम अली ख़ान के, उनका बड़ा रोल रहा। तीसरे निज़ाम के अहद में सिकंदर जा के अहद में जो है लोहे की कमान का दियोड़ी का आशुर खाना हो गया, और कुछ कुछ इसी किस्म के हवेलियों के महालखा बाई चंदा का आशुर खाना जो मंडी मीरालम में बैठता है वो तामीर हुआ, और मौला अली पे कुछ तौसी वगैरह। In this beautiful tomb complex of Malaka Bai Chanda, built in her lifetime for her mother, who is also buried here, and she also, Malaka Bai Chanda, is buried next to her mother. This area of Maula Ali is of great historical importance, starting from the Qutb Shahi period, continuing through the Asaf Jahi period. Until today, we are seeing religious processions being brought into the region. The area was very favored for people wanting to be buried here, so there are many tombs, and there were many buildings and structures where people would want to come and stay. Very close to us is the Kaman, Khushhal Kaman, Khushhal Khan Kaman, who was the spiritual and musical advisor and guide and guru to Malaka Bai Chanda. The structure that we are standing in today has been given twice Intact Hyderabad Heritage Award. One is for the restoration and conservation of the structure, and the second was for the gardens, the charbagh that surrounds this place. It is spaces like this that are the ornaments of Hyderabad today and of Telangana also of today. They are also examples of the religious amity and feelings
of communities that lived together during the Qutub Shahi period and the Asaf Jahi period also. Chandabai Malaka is famous. She has started to work in Dakhni Urdu when Persian, pure Persian, was actually the language used at that time. She is famous as the first woman to have her own divan to compose like that. Malaka Bai was very favored because she was brought up as a guardian, was Ruknuddaulah, who was Prime Minister of Hyderabad state. Chanda had the opportunity to also interact with Nizam II, and she was able, through her intelligence, to be able to interact at a court at a level where she was also able to talk to the resident and to participate in political discussion. Arastu Jah of Hyderabad state, who actually it is not well known, they were the first two to participate in the anti-British movement in Hyderabad and of course naturally at that time in India in 1818 onwards. We also have another reference where Turebaz Khan and Maulvi Alauddin of the Mecca Masjid also participated in the anti-British movement. We also had in the 1850s the Venkatappa Nayak, young Raja of one of the Hindu Samastans, Shorapur, which is in Gulbarga district. So this is the kind of atmosphere that she grew up with. Having been supported by her guardian Ruknuddaulah, who was Prime Minister, she had access to levels of the highest order of language, of culture, of music, of dance, and that is what brings us here today. We are here at the time of Muharram, which is celebrated in the Telangana by the Hindu communities who go home. It is called Peerla Pandaga. Peer we know, and Pandaga means festival. It is translated as celebration, but it is actually part of the Muharram commemoration that all the communities participate in. राजा रावरंबा ने मौला अली पर एक कमान बनाई और महालखा बाई की के उस्ताद जो थे खुशहाल खान ने एक कमान तामीर की, एक आशूर खाना तामीर किया और एक आबदार खाना तामीर किया। और इसके बाद जो चौथे निज़ाम का ज़माना है, चौथे निज़ाम के ज़माना ज़रा पुरशुभ रहा शहर के लिए। शहर में कुछ फसादात वगैरह पेश आए जिसकी वजह से मुहर्रम के ऊपर पाबंदी लग गई थी। जो बड़े आशूर खाने थे जैसे कि यतीमों का अलावा, मुल्ला रज़ी का अलावा और बारगाह मुबारक बड़ी बारगाह, इसके जुलूसों के ऊपर पाबंदी लग गई और अलम को बाहर निकालने पर भी रोक थी। इसी वजह से ये अलम जितने भी है ये अंदर ही का अंदर गश्त करते हैं। सिकंदर शाह के अहद में, चौथे निज़ाम के अहद में भी कुछ आशूर खाने जैसे कि कारवान के मेले के अलम बैठना शुरू हुए और सिकंदराबाद के तरफ कुछ रेजिमेंटल बाज़ार और उधर की तरफ जो है कुछ अलम बैठना शुरू हुए। पाँचवें निज़ाम का भी अहद जो रहा उसमें कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स नहीं रहे आज़ादारी के लिए। अफजलुद्दौला का ज़माना था। अफजलुद्दौला ने ये शुरू किया कि अफजलगंज की मस्जिद के पास उनके जो बैरक्स थे, जो उनकी फ़ौज रिसाला रहता था, वहाँ पर उन्होंने ताज़ियादारी शुरू की। तो हर एक टुकड़ी जो थी फ़ौज की वो एक अपना एक ताज़िया लेकर आशूर के दिन अफजलगंज की मस्जिद के पास जमा हो जाती थी। इस तरह से 300-400 ताज़ी अफजलगंज की मस्जिद के पास जमा होते थे। खैर अहद उस्मानी में ये भी ख़त्म हो गया है। अफजलुद्दौला के बाद महबूब अली ख़ान का ज़माना आया। महबूब अली ख़ान के ज़माने में भी जो है नए कोई आशूर खाने तो बने नहीं ज़्यादा, मगर आज़ादारी में जो है जो पुराने आशूर खाने थे उनका रेस्टोरेशन वगैरह हुआ। नवाब मीर उस्मान अली ख़ान के ज़माने तक तमाम सलातीन आसिफ जाही भी इस आशूर खाने में 7 मुहर्रम को हाज़िरी दिया करते थे। यहाँ पे तशरीफ़ लाते थे और यहाँ पे फूल ऊदो गुल के बाद में अपनी खराज ख़िदमत पेश करके वापस होते थे यहाँ से। और उसके बाद में अब आपको और एक बात सुना दूँ कि ये आशूर खाना हमारे स्टेट का आंध्र प्रदेश स्टेट था, उसके बाद में तेलंगाना स्टेट हुआ। ये स्टेट का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में ये रजिस्टर्ड है और ये इसके तमाम इंतज़ामात होना चाहिए था आसार क़दीमा के तहत, लेकिन नहीं होते थे। आशूर खाने की दीगर इमारतों में नक़ार खाना है जो बिल्कुल इसके सामने बना हुआ है, मेन आशूर खाने की इमारत के सामने, और उसके आजू बाजू नियाज़ खाना है और आशूर खाने खुर्द है और साथ ही साथ सराय है
और आपके लंगर खाना है, आबदर खाना है, मकान मुजाविर है, और गेट से मुत्तसिल चबूतरा एंड गार्ड रूम है। चबूतरे के ऊपर सबील नज़र हुसैन की सबील लगाई जाती थी। वो दौर में निज़ाम के ज़माने में, कुतुब शाहों से शुरू होकर निज़ाम के ज़माने में भी वहाँ पे शरबत ला के पिलाते थे लोग उस चबूतरे पे रख के, और ठंडा पानी ज़ायरीन को पिलाया करते थे शहदाए करबला के नाम पे। और ये आशुर खाने का सर्वाइवल हो गया है, रिवाइवल कर दिए हैं हम लोगों ने। अब जो तामीरात हो रहे हैं इसमें भी महकूम आसार कदीमा की तरफ से ही हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो वर्क इन प्रोग्रेस है। इंशाअल्लाह वो तामीर मुकम्मल हो जाएगी। उस्मान अली ख़ान का अहद आया जो 7वें निज़ाम थे हमारे, इनके अहद जो रहा काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा। इनका आखिरी जो है यानी 1930s से अगर आप देखेंगे तो इनका अगर शुरुआत की जाए तो सबसे पहले इन्होंने पंजे शाह का रेस्टोरेशन किया, यतीमों का अलावे का रेस्टोरेशन, और 1357 हिजरी में सरतौक़ मुबारक के अलम का आशुर खाने का रेस्टोरेशन। दारुशफ़ा का जो मौजूदा इमारत जहाँ अलम बैठ रहे हैं वो असल में उस्मान अली ख़ान की तामीर करदा इमारत है, वहाँ कभी अलम बैठा नहीं करते थे। असल आशुर खाना जो है, सरतौक़ का अलम जो है वो जहाँ बीबी ज़ैनब का अलम अब मौजूदा जो बिठाया जा रहा है वहाँ बैठा करता है। निज़ाम ने ही यह इमारत तामीर कर कर अलम यहाँ मुंतकिल किया। इसी तरह गोलकुंडे में जो पलटन का आशुर खाना हज़रत अब्बास का जो सफ़र के पहली तारीख़ या दूसरी तारीख़ को जो अलम उठाया जाता है वो भी निज़ाम ने 1358 हिजरी में वो तामीर किया। फिर उसके बाद पंजभाई का अलावा जो कारवान के पास मौजूद है, और फिर सरूनगर का आशुर खाना, ताड़बन का आशुर खाना और मुशीराबाद का आशुर खाना, ये सब आशुर खानों को इन्होंने फिर से बहाल किया, रेस्टोर किया और असर नौ तामीर वगैरह की इन्होंने। और एक बड़ा सिग्निफिकेंट काम ये किया मीर उस्मान अली ख़ान ने कि इनके हर पैलेस के साथ इन्होंने कुछ आशुर खाने तामीर किए अपने पर्सनल उसके लिए। तो सबसे पहला अगर देखा गया तो चौमोहल्ला पैलेस के अंदर तकरीबन 9 आशुर खाने और 4 अलहदा मजहबी इमारतें हैं। तो ये कुल मिलाकर कुछ 12 इमारतें हैं जिसके अंदर अलम इस्ताद होते हैं मुख्तलिफ और बेहद शानदार। इसके अंदर सोने चांदी के ज़रिया हैं और सोने चांदी के अलम हैं। और एक जो आशुर खाना इन्होंने बनाया था वो आसमानगढ़ पैलेस के पीछे बनाया था जो आज भी मौजूद है। 3 आशुर खाने इन्होंने महबूब मेंशन पैलेस के पास बनाए थे, जिसमें से एक अफसोस है कि एक आशुर खाना बहाल है आज़ादारी से। इसी तरह फर्न विला के अंदर जो रेड हिल्स पे है वहाँ 2 आशुर खाने थे और जो आज भी है, मगर वहाँ अलमों की इस्तादगी अमल में नहीं आ रही है। और एक जो आशुर खाना था इन्होंने अपनी मज़ार जहाँ निज़ाम मदफन है मस्जिद जूदी में, तो मस्जिद जूदी के लेफ़्ट साइड जो है वो यानी अगर आप सरकार उस्मान अली ख़ान की मज़ार के पास ठहर जाएँ, लेफ़्ट साइड अगर देखें तो मस्जिद है और राइट साइड अगर आप देखें तो आशुर खाना बैतुल हुस्न है। ये शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा के नाम से इन्होंने मंसूब किया है ये आशुर खाना। और इसी तरह इसके बाद जो है और एक जो मशहूर आशुर खाना था जो लोग अक्सर वाकिफ़ नहीं हैं, वो है आशुर खाना है शिफा खाना ज़हरा। तो ये जो है ये आज जो आपका जामबाग की सड़क है वहाँ पर ये आशुर खाना वाक़ था। इसके अंदर 3 अलम बैठा करते थे, एक बीबी सकीना के नाम से, एक बीबी ज़ैनब बीबी फ़ातिमा ज़हरा के नाम से और एक जो है वो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला के नाम से। तो इन अलमों की इस्तादगी जो है वो तकरीबन 20 साल पहले बंद कर दी गई और वो अब तो शिफा खाना जो है वो आज़ादारी से भी महरूम हो गया। और करबला की याद में 1361 हिजरी में उस्मान अली ख़ान ने अज़ा खान ज़हरा की बुनियाद रखी। 1367 हिजरी में अज़ा खानी की अंदर पहली बार अलम इस्ताद हुआ। तो जो मौजूदा अलम है वो 1367 हिजरी का अलम है। और उस्मान अली ख़ान ने सरफ़ ख़ास ट्रस्ट कायम किया और उमूर मजहबी का भी फॉर्म किया जिसके तहत आज़ादारी होती थी। मगर अफसोस कि आज तकरीबन बेशतर उस्मान अली ख़ान के तामीर करदा आशुर खाने ख़त्म हो चुके हैं और बेहद कस्मा पुरसी के शिकार है।